पहले आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे सैम डिसूजा की एक 2 मिनट की आपको वीडियो दिखाऊंगा। कृपया लाइट बंद कीजिए, मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ। With the NCB officials, since I got a call on the first from Mr. Sunil Patil saying that he had some info in regards to the proof, and he told me if he could correct me with the NCB officials, since I know some NCB officials through some media magnets. So I told him I will talk to them and let you know. And when I spoke to them, they asked me that do you have any confirmed information? So I insisted on Mr. Patil that he send me the information in which they are satisfied and then they will meet me. So Patil sent me on the first night, he sent me a list of 27 people. And after that, he told me that he is sending his people, that is Mr. Kiran Gosavi and Manish Bhanushali, to Bombay for Ahmedabad. And at 7:30 in the morning on the second, when they reached, they called me and they insist me to come and get this meeting done between the NCB and them. But unfortunately, it is not my profile, it's not my job, so I didn't vouch for it. And I said no. And at 9 o'clock, they met the superintendent of the Mumbai Zonal Unit, and everything was done. And after that, at around 8:30, when I was having dinner with my associates, I get a call from Mr. Sunil Patil again, stating that can you please go to the Green Gate, where the cruise was. There was a raid conducted at 4 p.m. in the evening. So I told him, boss, this is not my job again, and I am not liable to go there because I have a meeting that's going on with my associates. And I asked him, you can call Mr. Gosavi, who is your man, so that you can take updates from him. That's why I introduced you to him. Okay, so you can get your work done. But then he insisted me, saying that please, Kiran Gosavi is not answering my phone, so can you please go and meet him? And so I told him that I'll finish my dinner, I'll finish my meeting, and then I will go towards Greenway. So after I finished with this, I went towards Greenway. I met Mr. Gosavi for the first time. And then we only coordinated on the phone. He shook hands with me, he said thank you for letting me introduce to the NCB official. I said you are doing a good job and I was thinking to do good for the nation. That's the reason why. ये आपने देखा, ये सैम डिसूजा हैं जिन्होंने सुनील पाटिल के बोलने पर किरण गोसावी को वी सिंह करके अधिकारी से मिलाया। जिस हिसाब से पिछले कुछ समय पर में 1 महीने में एक नया नैरेटिव, एक झूठ की स्टोरी, भारतीय जनता पार्टी का रेड के साथ इन्वॉल्वमेंट, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विटनेस बनना, भारतीय जनता पार्टी का समीर वानखेड़े के साथ हैंड टू हैंड होना, तो ये कॉन्स्पिरेसी रचने वाले ऐसे महाराष्ट्र के कौन से मंत्री हैं जिन्हें सुनील पाटिल को आगे कर एक कॉन्स्पिरेसी रचाई, ये प्रश्न खड़ा होता है। ये राष्ट्रीय एजेंसी और किसी अधिकारी को बदनाम करने के लिए ये कौन सी पिक्चर का निर्माण किस मंत्री और कितने मंत्रियों ने किया कि जो सेंट्रल एजेंसी महाराष्ट्र में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ड्रग फ्री की मुहिम चला रही है, उसमें ड्रग फॉर नेशन की मुहिम चलाने वाले मंत्री और नेता इसके पीछे कौन है, उनको जवाब देना पड़ेगा। ये मैटर यही नहीं रुका। जब ये किरण गोसावी और बाद में आगे चलकर सैम डिसूजा की बातचीत हुई और उसके अंदर किरण गोसावी ने सैम डिसूजा को धमकी भी दी, लेकिन उसके पहले सुनील पाटिल और सैम डिसूजा की आपस में एक अगस्त में बातचीत हुई। वो टेप भी मैं आपको साझा करूंगा, जिसके अंदर सुनील पाटिल कैसे बताता है कि उसका कितना रुतबा महाराष्ट्र की राजनीति में और राजनीति में यहाँ पे मंत्रियों के साथ पिछले 20 वर्षों से है। मैं इस ऑडियो के माध्यम से
किसी मंत्री के ऊपर जिसका नाम लिया गया उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है कि उनको जवाब देना पड़ेगा कि सुनील पाटिल के साथ उनके क्या संबंध हैं। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन मैं उस पर उनके ऊपर बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगाता। मैं मीडिया को बोलना चाहूँगा, बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको सुनील पाटिल के साथ क्या संबंध 20 साल से रहे हैं, उनके पार्टी के, उनके नेताओं के और खास करके होम मिनिस्टर्स के क्यों संबंध सुनील पाटिल के साथ रहे, महाराष्ट्र की बदलियों में सुनील पाटिल का क्या लेना देना। ये कॉन्स्पिरेसी जो महाराष्ट्र में क्रूज पार्टी पे रची गई रेड की, उसमें एक अधिकारी को बदनाम करना है क्या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को टिंटेड करना है क्या, या महाराष्ट्र में ड्रग मुहिम को बढ़ावा देना है क्या, या कोई बहुत बड़े एक सिंडिकेट को शरण देने का काम महाराष्ट्र के कोई मंत्री कर रहे हैं। ये सवाल उठ के आपके सामने खड़ा होता है। ये ऑडियो सुनिएगा गौर से आप, होगा, लेकिन महाराष्ट्र के अभी के भी होम मिनिस्टर का नाम सुनील पाटिल ले रहा है। मैं कोई होम मिनिस्टर पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इसमें सम्माननीय आर पाटिल जी का भी नाम लिया गया। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के साथ सुनील पाटिल के पूरे हैंड टू हैंड संबंध है, जिसकी जांच एजेंसीज कर रही हैं। और दिल्ली बैठकर कैसे वो महाराष्ट्र के नेताओं के साथ काम कराता है, ये खुद सुनील पाटिल जी ने बोला। ये सब ऑडियो टेप्स, वीडियोस मुझे जिस सोर्स से आए, एक अननेम सोर्स से आए, मैंने ये आगे एजेंसीज को वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया कल शाम को। ये एक बड़ा सिंडिकेट है। किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है और इनका काम है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमना, उनके साथ फोटो खिंचाना, रिकॉर्ड बनाना, चाहे किसी भी दल के हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बदली का, ट्रांसफर और पोस्टिंग का सुनील पाटिल चलाते आए हैं। मैं उसमें आपको आगे थोड़े 2 मिनट बाद जानकारी दूंगा। लेकिन सुनील पाटिल और किरण गोसावी जो मैंने आरोप लगाए कि दोनों उनके लोग हैं, ये उसका रहा प्रूफ। इसमें आप देख सकते हैं कि गुजरात के एक मंत्री के साथ दोनों ने फोटो खिंचाए। ये एक सिंडिकेट है बहुत बड़ा। ये प्रूफ करता है कि जिस हिसाब से एक झूठा नैरेटिव बनाने का काम, एक झूठी स्टोरी बनाने का काम महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री ने किया पिछले 1 महीने से, वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या वो देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध कर बैठे हैं? क्या एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफिया की कोई मुहिम के साथ जुड़ी हुई है? क्या उनको महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री संरक्षण दे रहे हैं? ये एक प्रश्न है जो आपके सामने आके खड़ा होता है। ये बात तो ये सब रिकॉर्ड देखने के बाद होती है। हम लोग कोई नहीं होते किसी को क्लीन चिट देने वाले, लेकिन ये बात जरूर प्रूफ होती है कि जिस हिसाब से एक अधिकारी के ऊपर पिछले 1 महीने पे आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बैक होकर, हैंड टू हैंड होकर ये कार्रवाई हुई, इसमें ना भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लेना देना है। ये प्रूफ होता है कि किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है, प्रभाकर सेल किरण गोसावी का ड्राइवर है, वो भी सुनील पाटिल का आदमी है, मनीष भानुशाली वो भी सुनील पाटिल का आदमी है, सैम डिसूजा सुनील पाटिल का दोस्त है। तो एक एफिडेविट जो रेड के बाद बना कि जिसके अंदर, बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपसे सामने पूछ रहा हूं, जिसके अंदर सुनील पाटिल का आदमी बोलता है कि उसके आदमी खड़े थे, 25 करोड़ रुपए उसने एक अधिकारी के नाम पे मांगा, जो अधिकारी का दूर दूर तक किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बात प्रूफ होती है कि ये पूरा एक सिंडिकेट, एक पूरा षड्यंत्र, बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई। महाराष्ट्र में भी एसआईटी बैठी है। मैं लास्ट में एक ऑडियो सुनाऊंगा, उसमें जो नाम के खुलासे होंगे, एसआईटी को खुलासा करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के कौन कौन से मंत्री इन्वॉल्व थे जो शाहरुख खान के लिए पैसे की तोड़पानी करने के लिए उतरे आपस में।
क्या ये ब्लैकमेलिंग का रैकेट कोई मंत्री चला रहे थे? इसके पीछे क्या महाराष्ट्र के एक मंत्री एजेंसी को भी टारगेट करना, ऑफिसर को भी टारगेट करना और वसूली भी करना, 3 एजेंडा लेके चल रहे थे? छूट गया तो हमने छुड़वाया, नहीं तो ये एजेंसी ने कार्रवाई की। क्या ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का रची जा रही थी महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसी को और अधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए? इसका जवाब महाराष्ट्र के मंत्री को देना पड़ेगा और पूरी पार्टी को देना पड़ेगा। उनको अपने रिश्ते सुनील पाटिल के साथ क्या है बताने पड़ेंगे। ललित होटल जो मुंबई में है, पिछले 8 महीनों से, अब पिछले नहीं, कुछ पिछले महीने में गिनूंगा, 4-5 महीने पहले के 8 महीनों से, मतलब 1 साल पहले से सुनील पाटिल का एक बड़ा स्वीट वहां पे बुक रहता था। शराब और कबाब की वहां पे पार्टियां होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से मंत्री थे जो सुनील पाटिल के साथ शबाब और कबाब का मजा लेते थे? मैं नवाब मलिक जी से पूछना चाहूंगा कि वे सब वीडियो साझा करें। ऋषिकेश देशमुख ललित होटल में 1 साल क्या करते थे सुनील पाटिल के साथ? कौन से महाराष्ट्र के अधिकारी डीसीपी की बदली में 2.5 करोड़ रुपए लेना और ग्रुप ट्रांसफर में 1-1 करोड़ रुपए लेना? इसका जवाब नवाब मलिक जी महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता को दे। मैं एक और बड़ा खुलासा करूंगा और बहुत ही सनसनीखेज खुलासा करूंगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने देखा 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम के सेवन के ऊपर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री इसको गुनाह नहीं बताते। 2 ग्राम 3 ग्राम ही कोकेन रोज लिया जाता है, कोई 10 ग्राम और 100 ग्राम नहीं लिया जाता है। और डेली 2-2 ग्राम करके लेके ही आदमी ड्रग्स का हैबिचुअल बनता है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है, मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, हो सकता है ये आरोप भी इनडायरेक्टली हो, क्या ड्रग पेडलर्स, ड्रग माफिया, ड्रग सिंडिकेट को शरण देने का काम चल रहा है? क्या महाराष्ट्र में ड्रग फॉर मुंबई और ड्रग फॉर महाराष्ट्र की मुहिम को बढ़ाने का काम चल रहा है? क्या ड्रग्स से आए हुए पैसे देश के विरोध, टेररिज्म या कन्वर्जन या दूसरी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटी के लिए ये यूज होता है, उसको महाराष्ट्र में बढ़ावा दिया जा रहा है क्या? ये मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। म्याऊ म्याऊ एमडी जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा ड्रग है। दाऊद इब्राहिम का गुर्गा एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जनवरी में अरेस्ट किया, जिसका नाम है चिंकू पठान।